Very good evening, friends. Today we have the privilege of having with us CA Divya Somaniji, who is an insolvency professional as well. We have been blessed to have guidance from her on earlier occasions as well, when she deliberated on LLP, Partnership Act, Indian Contract Act, Negotiable Instruments Act, and our members really liked the deliberations. So today we have invited her to deliberate on issues in Partnership Act and LLP Act, particularly from exam perspective. So with this, over to CA Divya Somaniji. So Somaniji, please. Thank you, sir. Thank you so much for inviting me. Uh, as all the participants are here, I wish you all a very good luck. And the course is really too wide, and the sessions, I think, sir has covered everything in all the sessions. And to begin with to begin with the LLP, I think first we can take Indian Partnership Act, and then we can take LLP, right? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। Okay, so I will just share the screen. I think you all are familiar with the Contract Act and Sale of Goods Act, etc. Indian Partnership Act is basically it has been taken from Contract Act itself. So earlier it was a part of Contract Act, and in the year 1932, it has been bifurcated and made a separate law altogether. So Chapter 10 of Contract Act has been converted into Indian Partnership Act altogether. So let me just share the screen first of all, and then we will move further. Just give me a second, please. Is it visible? Not yet. Not yet, madam. Okay. Sometimes it takes time. Yeah, maybe just a second. Just a second. I'm just downloading it again. Yes, now it is visible. Page 1 of 31. Okay. But in fact, at my end, I'm not able to see what has happened. Just a second. Okay, is it visible now? Yes. Now it is perfect, madam. Okay. Okay, let's just start. Because I won't be able to maximize the view. It is in PDF format. I hope the contents are clear. And I request sir kindly mute everyone so that the voice is clear. Okay, ji, okay. Yes, sir. So I was just telling you, the Indian Partnership Act has been derived from the Contract Act itself, the Chapter 10 of Contract Act. Madam, now you please unmute yourself. Okay, now am I audible now? Yes. Very much audible. Okay. So I was just telling that the Indian Partnership Act has been derived from the Contract Act itself. So more or less the provisions are similar to that of the Contract Act. So it is a special kind of contract wherein people get together, they enter into an agreement, and they want to do some kind of business, mainly for the profit sharing purposes. And if there is no agreement, we all know that there are some specific points which are governed. Like if you don't have a separate agreement, the profit sharing ratio would be equal. And if there is no remuneration decided, it won't be given. Capital interest on capital would be given. Interest on loan will not be given. Like that, whatever the conditions are there. So I'll be covering these topics. You can just go through these topics: applicability and the scope, what are the sections covered in the Indian Partnership Act. Then we will just discuss upon the basic definitions, characteristics of the partnership,
And what are the various types of partnerships? What are the types of partners? These two are different things. If we talk about what are the various types of partnership, it would mean different kind of agreements. Like it is for a continued basis, like a partnership at will, or you want to have it for a fixed term. So that would be considered as a type of partnership. And what are the various types of partners? Types of partners are like nominal partner, sleeping partner, active partner, and all that. Then we have implied authority of partners. Implied authority and express authority are the two kinds of authorities which are given by this act. So when you enter into a partnership, you have become a partner. So by becoming a partner, you have some authorities given to you by the act itself. So they are called implied authority. So even if they are not told, you yourself have those authorities. Like I can appoint an employee, I can do the purchase on behalf of the firm, I can sell on behalf of the firm, I can receive the money on behalf of the firm. But if it is specifically prohibited in case of any partner, he or she is not eligible to do so. So we will discuss that also. Then next we have is registration of the firm. As we all know, registration is not compulsory. However, nowadays it has become a trend to get the firm registered in order to save yourself from the consequences, legal consequences basically. Then we have a topic that is reconstitution of the firm. Reconstitution would basically mean admission, retirement. So any change in the partnership, any change in the partners would constitute a reconstitution. That would simply mean a reconstitution. The firm, as it was originally made, is no longer the same. There has been some kind of change due to the death of the partner, due to the admission or retirement or whatsoever. Then we have the dissolution of the firm. And just a second. Dissolution of the firm can be by various reasons, and we'll discuss in detail everything. So these are just the topics which we will be covering, and then we will have an interplay between IBC and IPA. So what is the relationship between the two, and then we will have some question and answers, and later on we will move on to LLP. So I'm just taking the topic. Applicability, it is applicable all over India. Just like Contract Act, it is applicable all over India. Earlier it was it was not applicable to Jammu and Kashmir, but now it is applicable to Jammu and Kashmir as well. So it is applicable from 1st October 1932 itself. How many sections are there? There are in total 74 sections. So you don't have to bother about all the sections. We will be discussing the major topics here itself. Object of the act is basically the Partnership Act is to define and amend the law relating to the partnership. Next, this is just the basic thing. We will be discussing the practical aspect as well as we move on. Basic definitions, because these terms you will be seeing frequently, and maybe in your practice also you are coming across these terms, but just from the question and answers point of view, these become very important. So the definition part is covered in section 4. Partnership is the relationship. Firstly, we are discussing the partnership definition. Partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. This is the basic definition on which the whole act depends. So partnership, you can just take away the key elements or the characteristics of the partnership if you just go through this definition, the highlighted parts. Firstly, it is a relationship between two or more persons. So how many people are involved? Minimum 2 and maximum. The limit is not specified in this act. However, the maximum limit is governed from the Companies Act. In Companies Act, we have section 464, which says that if a particular association or a group of persons or a partnership, if it exceeds a certain number, which is right now 50. So if it exceeds that number, it will have to convert itself into a company, or else it will be known as illegal association. So that is why the maximum number of partners is limited to 50, which is governed by the Companies Act. So if there is any change in Companies Act in the number of partners or in the number of members, that is, we will have a change here also. So next, a key element of this definition is they enter into an agreement. Now, agreement, as you have studied, it can be oral, it can be written. So if it is written, it is known as partnership deed. And if there is no written agreement,
there are some implied rules which are applicable, which are governed by this act itself. As we have discussed earlier, even if there is no agreement, you can still carry on with the partnership. But importantly, this agreement is to share the profits. However, losses are not mentioned here. Profits itself includes losses as well. So you might have a question like, is it necessary that all the partners need to share losses also? The answer is basically everyone has to share profits as well as losses, but if there is a specific term or condition that this partner will not be given a share of loss, for example, we have a guaranteed partner, we have a minor partner who is not given a share of loss, so in that case that partner is exempted, he will not be having a share of loss. However, in any if in all the other cases, all the partners will share profits as well as the losses of the business. So business is very important. Business actually means the continued process. It cannot be one or two activities. So that is why we can differentiate between joint venture and the partnership. So joint venture is basically for one particular event you are entering into partner. You are making a joint team or something, an association, and you are not continuing it for further. But in partnership, the basic intention of the partner is to continue the business. So the continuity is very, very important. So going concern concept is here. That's it. So it is carried on by all or any one of them acting for all. This means they have a mutual agency. This is the key characteristic of a partnership. So in company, we do not see any mutual agency, but in partnership, there is a mutual agency. So in simple words, if I say, what do you mean by mutual agency? It is like if one of the partner has taken a loan, the other partners are bound to pay it. But importantly, is it like everything has to be paid, or is it like every thing which a partner does, he makes the other partners bound by it? Well, the answer is it's not always like that. If the partner is doing, if any partner is doing anything in the name of the firm, and it is a usual course of business, then only he will make the other persons bound. Otherwise, he will not make the other persons bound. Let me just give you an example. Suppose ABC are partners, and A has done any kind of criminal act. He has suppose murdered someone. So court has punished him and even levied a kind of fine and imprisonment on him. So will that imply that other partners will also face the same consequences? No, it is not like that. That is in his personal capacity. It is not that he was representing the firm in that act. So the firm will not be bound. Simply means the other partners will not be bound. So when are the other partners bound? The answer is if any partner is doing anything in the name of the firm, he's using the firm name, as well as he's doing any activity in the course of the business, which is in a usual course of business, then only he will make the other partners bound by it. So I hope it is clear, mutual agency. Then next, we all know what is partner. What do you mean by partners? So individually, the persons who enter into partnership are known as partners, and collectively they are known as firm. Basically, they work under a name which is known as firm name. For example, ABC and Company, ABC Associates, whatsoever. Partnership is thus created by contract. It does not arise by operation of law. So this is the basic difference between, just a sec, the slides have moved on their own. Just a sec. So the basic difference between HUF and partnership is that in HUF, the members, they get the status of a member by just taking birth in that family. So anyone who takes birth in that family will become a member of the HUF. However, in partnership, it is not like that. You'll have to enter into an agreement to become a partner. So it is said like that in section 5, that it does not arise by operation of law. Automatically, it does not happen. So it does not happen by status as well. So you have to get into a contract basically. So it must satisfy all the essential elements of a valid contract to become a valid partnership. So again, as I said, it has been taken from the Contract Act only. So all the essentials of a valid contract must also be met. So what are the essential elements of a valid contract? Consensus addendum has to be there. Then basically
offer and acceptance has to be there, everything, or what all you have studied, capacity of the partners is there. But there is an exception in capacity to contract. In Contract Act, we have studied that minors cannot enter into contract, right? But here we can see in partnership, even a minor can become a partner. So how is it? It is a kind of exception. If you have studied in Contract Act, for benefits, minor can enter into contract if it is for his benefits. So if he is getting share of profits, till that moment he can be a partner. He will not be given share of losses. So that is the thing, he can enter into partnership. But as soon as he attains majority, the things change. So as soon as he attains majority, section 13 of this act becomes applicable, and it says he has to give a public notice. So if he wants to continue as a partner, he has to give a public notice. And if he does not want to continue, still he has to give a public notice. Suppose he forgets to give public notice or he does not give public notice, it would simply mean that he wants to continue as a partner in the firm. So public notice is essential in case a minor converts into major and he wants to continue or discontinue in the partnership. And what are the other consequences we will study in the course of time. Just let me go through the next part. What is the maximum number of partners? This was a quiz, however, it is in PDF format, so you will see the answers also. So number of partners, maximum partners, as we have said, it is governed by Companies Act, and maximum number is 50. Otherwise, that association is known as illegal association. So question for all of you. Suppose a partnership firm has exceeded the number. It has become, suppose, 51. So it will not be known as a partnership firm. At the same time, it will not be known as a company if it does not get itself registered as a company. It will now be known as illegal association. So the question here is whether the income tax would be applicable on such illegal association or not. You can give your answers in the chat box. Yes. Yes, you are right. Few people have answered. Yes, Income Tax Act simply says if you are having any income, you have to pay tax, irrespective of the fact whether you are illegal association or not. So they are not concerned about what the status is, because association of person is again a status as per the Income Tax Act. So if you are an association of person, whether it is legal or illegal, it hardly matters. You have to pay tax, right? So let me just take the slides further. What is the position of minor? As we just said that minor can become a partner. Okay, at the time of being a partner, during his minority, what all benefits does he get? He gets the share of profits. Can he participate in the business decisions? Can he participate in the business decisions? He has the right, but he does not have that experience, so he cannot share, but he is allowed to come to the meetings. So can he take the accounts? Can he see the accounts? Yes, he can see the accounts. If he cannot, he can ask someone on his behalf to see the accounts. He is supposed to have those accounts because his share is dependent on those accounts. So he cannot be denied of that you don't understand these accounts or something. He will be given those accounts. So suppose he does not get his share of profit for some year. Can he file a suit? In ordinary course also, if a partner does not get his share of profit, can he file a suit? In ordinary course, a partner can file a suit. But if he is a minor, in that case, can he file a suit? Sorry, he cannot. The answer is no. During his minority, he cannot file a suit. But when he terminates himself, when he retires from the partnership firm, like when he attains majority and he decides he does not want to continue, at that moment he can file a suit. So filing of suit is not allowed during minority, but as soon he separates himself from that partnership, at that moment he can file a suit. So let us understand the position of minor when he converts into major. So when he converts into major, the first and foremost thing is he has to give public notice. So public notice
how it is given and where it is given and at what time it is given. So basically, the public notice is given like in the form of an advertisement in the newspaper or a notice in the newspaper, basically. So the newspaper which is in general circulation, as we say in vernacular language, as well as the area where the office is situated in that city, that newspaper should have this public notice that this person is no longer a partner in the partnership firm, or he wants to discontinue, that kind of thing. Okay, so if a firm is not registered, whether still he has to give a public notice? Yes, he still has to give a public notice even if the firm is not registered. And if the firm is registered, an extra information is to be given to the registrar of the firms, right? So in newspaper as well as to the registrar of the firm, this notice is to be given. So where notice is to be given, that we have understood. But when this notice is to be given, as soon as he attains majority, he should give this public notice, or there is some time period. So according to law, 6 months are given. As soon as you attain majority, from that 6 months are given, or when you have the knowledge that you were a partner somewhere. So basically, it is a kind of some kind of if you get into some kind of trouble, that why did not you give this public notice earlier, you can always say an excuse that I did not know that I was a partner somewhere, because the law says whenever you attain the knowledge of it. So whenever you are having the knowledge of it, that time you can just say give this public notice, or 6 months after attaining the majority, that time period is given. So it is very difficult to prove that you did not know that you were partner somewhere, and if you can prove that, this will not be a big issue. So the timing we know, and the place we know where this notice is to be given. Now, what are the consequences on attaining majority on after giving public notice? Suppose public notice says that I want to continue as a partner of this firm. So minor has accepted to become a partner of this firm. So till during his minority, since he was minor, he was only getting the share of profits. But as soon as he becomes a major and he wants to continue into the firm, then the share of profit as well as the losses will be given to him. Okay, now the question arises, what about the loss? What about the share of loss of the previous time when he was a partner earlier? So during the minority, will that retrospective effect will be given to him? Yes, retrospective effect will be given to him. Like, let me take just example. A, B, C are partners. A is a minor partner. Okay, one more question in this case. Suppose I say A, B, C are partners and A is a minor. A is a minor, B and C are major. Can they start a partnership firm? At the very inception, can this kind of partnership work? What I'm saying is, one is minor and the other two are major. Can they together enter into partnership? Yes, Amitji have answered. Amitji has answered. So it's no, basically, because from the inception, you cannot have a minor. Minor is always admitted to a partnership firm. He cannot be a partner from the very beginning itself. This is the rule. Because as we have read in the Contract Act also, minor cannot enter into partnership. But for benefits, he can. So for the benefits, later on, he will be admitted to the partnership. So there are basically 3 conditions for admission of a partner. If you want, you can just note it down. First condition is there has to be an existing partnership firm. Okay, what question we are discussing? We are discussing when we can enter a minor as a partner. We can admit minor as a partner on fulfillment of 3 conditions. Condition number 1 is the partnership firm should be an existing partnership firm. It should not be a new partnership firm. So from the very inception, this minor cannot be entered into partnership firm. But if it is an existing partnership firm, suppose you have started the partnership firm today and tomorrow you want to enter a minor, you are allowed to do so. It has to be an existing partnership firm. That's it. This is the first condition. Second condition. Can you not see my screen? I'm just, it's not there in the screen. I'm just, it's not there in the slide. I'm just telling it to you like that. You have to note it down. Sorry.
So the first condition was there has to be an existing partnership firm. Second condition is he should be entered only for the benefits. He should never be given share of losses. So that is the second condition. Third condition. Third condition is consent of all the partners is required if you want to enter someone as a partner who is a minor. So consent of all is required. 100% consent. Without 100% consent, you cannot have minor as a partner. Majority of the decisions in the partnership firm are taken as majority only, like more than 50%. If the partners agree, they can carry on with the things. But in case of admission, they need to have 100% consent if they are entering minor. So this was the thing. Now moving further, if a minor converts into major, he has to give public notice, as I have just told you. He has to give notice at what time? As soon as he attains majority, within 6 months from that time, he can give the notice, or whenever he attains the knowledge of it. That is the thing. The next thing is, what are the consequences? Consequences are retrospective effect will be given. Retrospective would just mean when he was he was partner from 2005. During his minority, he was partner there, and on 2021 he has become a major and he wants to continue. So from 2005 till 2021, the share of losses will be given to him. So शेयर ऑफ लॉसेस कैसे देंगे उसको? तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं. सपोज फर्म ने एक लोन लिया था 2010 में. उस समय वो पार्टनर था, माइनर वाज अ पार्टनर एट दैट टाइम. सो उस केस में 2010 वाला लोन अगर फर्म ने 2015 में चुका दिया, पेमेंट हो चुका है, तब तो उसको कोई शेयर नहीं मिलेगा, उसका कोई पेमेंट उसे नहीं करना. पर अगर वो लोन अभी भी कंटिन्यू है, तो जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एज ऑन द डेट व्हेन ही वाज अ पार्टनर, आई रिपीट, एज ऑन द डेट he has attained majority, at that moment whatever the outstanding balances were there, he will be given a share of that. So he will have to pay the loan if that was existing on the date he was converting into major and he wants to continue in the partnership firm. If he does not want to continue, nothing will be given to him. But if he wants to continue as a partner, those outstanding loans, the burden of payment of those loans will be given to him. That is it. And if he wants to discontinue from the firm, he can file a suit, as I have already told you earlier. At that moment, if he has not been given his share of property or his share of profits sometime earlier, then he can always file a suit for that. Okay, now let's move further. This was the position of minor. Now the question is, can two companies enter into partnership? The answer is already reflected on the screen. Yes, two companies can enter into partnership because companies, as you know, they have a separate status. They have a legal identity. They have a separate legal identity, as we say. So they are considered an artificial person. So Partnership Act does not restrict that only natural persons can enter into partnership. Natural person as well as the artificial person or a combination of both can enter into partnership. So two companies can enter into partnership. In partnerships, persons can be natural or artificial, as I have just said. However, firm cannot enter into a contract of partnership because firm does not have a separate status. The firm of partnership firm is just like that of partners. So partnership firm and partners are one and the same, as we say. So if a partnership firm wants to make another partnership firm, suppose two partnership firms are there and they want to collaborate, they want to enter into a new partnership firm, they cannot do so. However, the partners of one firm and the partners of another firm can enter into a partnership. But in that case, they will not be representing the firm. They are doing something in their at their own individual level. That is the thing. So they cannot represent the firm altogether. I hope it is clear. Next, moving further, again, there is a question. Is it mandatory to share the losses? Again, I said, just discussed earlier that in case of minor or in case of guaranteed partner, they are not sharing losses. Sharing of profits is must, but sharing of losses is not must. But it should be mentioned in the deed. If it is not there, this kind of separate clause is not there, then in that case, they have to share the losses. What is the true test of partnership? It is given in section 6.
that is mutual agency. Sharing of profits is basically not the true test of partnership. So this question is basically, suppose three persons are working together. How will you identify that they are in a partnership or they are in a joint venture, or how will you identify? So the basic thing is, if the act of one person makes the other persons bound by their act. So if one person is making the others bound, then in that case, so if one person is taking loan, the others have to pay, suppose that kind of thing is there. In that case, that is a case of mutual agency. And if mutual agency is there, it is a concept of partnership which they are working upon. That is the organization of the business in that case. So these are some cases. Next, you can see on the screen cases where sharing of profits is there, but still they are not the partners. For example, a retired partner may share the profits of the firm. How will he share the profits of the firm? Retired partner. Suppose a retired partner, a person who has retired from the firm, but the firm has not paid him completely. His capital is still there in the firm. So he has not been paid completely. So the rule according to Partnership Act says that he should be given 6% interest on the capital which is unpaid, which is still there in the firm. So he will be getting 6% of the capital or the share of profit which he was earlier getting. Whatever he likes. It is not written whichever is higher or whichever is lower. It is not written like that. It is given an option to the retired partner. If your capital is still unpaid, you can still claim the profits. But you are no longer a partner, that person is no longer a partner, and he cannot make the person bound by his act. I hope it is clear. He is sharing the profits, but he is not liable to the acts of the firm, or he will not make the others liable by his act, both the ways. Okay, let me ask a question at this point of time. If a person retires from a firm, how will others know about it that he has retired? Public notice must be given in that case. RK Soni ji, you were asking something? Yeah, public notice, right. So it is very, very important who all have to give public notice. So every time a person retires from the firm, he has to give public notice. Again, the question, whether the partner who has retired, he has to give a public notice, or the firm has to give public notice? Who should give? Anyone can give. The law does not has any restriction in this case. The law simply says that notice should be given. Whosoever is willing can give the notice. Suppose partner feels that my name will not be used correctly, or my name will be illegally used by the firm for doing some illegal things. So better I should give public notice. So in that case, partner can give a public notice. And if the firm thinks that the partner who has retired, will misuse the name of the firm, so in order to protect that, the firm can also move ahead with the public notice. So there is no problem, anyone can go for the public notice, and the process is still the same. If the firm is registered, the notice will be given to the registrar of firms as well as in the newspapers. If the firm is not registered, it is simply given in the newspapers, right? So we were discussing the cases where sharing of profits is there, but still these persons are not partners. So next, B point, money lenders receiving profits. Money lenders receiving profits means, suppose a partnership firm is there and they have taken a loan from someone, and in lieu of interest, the money lender is saying that whatever you earn, whatever profits you are earning during the year, just give me 10% on it. So he's not taking in the name of interest, rather he is taking in the name of profits of the firm. So if he is taking profit, will he make firm liable by his act? No, it is not so. RK Soni ji, you have raised your hand. If you want, you can ask her. Yes, ma'am. In fact, I want some clarification regarding, you told that in 2005 there was some loss, or loss is carried forward till now, until he become the partner, major partner. So just एक बार दोबारा इसको रिपीट करना था, हाँ राइट? जी काफी सर, पीछे हो गया है। मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं है। इसमें सिंपल सा सर ये होता है कि जो भी आउटस्टैंडिंग लोन्स दिख रहे हैं बैलेंस शीट में,
जो पे हो गया उसके लिए उसको वापस नहीं बोलेंगे कि भाई तुम निकालो पैसे, तुमने पहले नहीं दिए थे, ऐसा कुछ नहीं है। पर अभी जो आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं उसके लिए उसको लायबल ठहराया जाएगा। ही विल आल्सो बी बाउंड टू पे। ये तो हो गई लोन्स की बात। जैसे आप लॉसेस के लिए बोल रहे हैं सर, लॉसेस भी जो कैरी फॉरवर्ड हुए वो आपके प्रॉफिट्स को नो डाउट अफेक्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स वगैरह के लिए, तो उसको उसका शेयर रिस्पेक्टिवली कम मिलेगा, जैसे कि और पार्टनर्स को पहले मिल रहा था सेम बेस। नहीं, आगे कहीं बीच में जाके तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो फिर वो तो हाउ सभी विल के साथ सेम हो गया ना, वो तो सभी के साथ सेम हो गया। मतलब कहने का मतलब पहले उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे, अब उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अब उसको बिल्कुल वैसे ही देखेंगे जैसे कि वो एक नॉर्मल पार्टनर है। तो जैसा सबके साथ होता है वैसा उसके साथ भी होगा। एक और क्वेश्चन था इसमें, आपने हाँ बताया कि माइनर कैनट शो, लेकिन वो गार्जियन के थ्रू तो इशू कर सकता है ना? सर, यहाँ पे इस वाले केस में है, यहाँ पे सूट किस लिए फाइल कर रहे हैं? उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए सूट फाइल कर रहे हैं यस, या हाँ, आप डिसोल्यूशन के लिए सूट फाइल कर रहे हैं? किस लिए फाइल कर रहे हैं? तो सारे राइट्स नहीं दिए हैं सूट फाइल करने के लिए उसको। उसको बेसिकली ये बोला है तुमको तुम्हारा शेयर प्रॉफिट मिलता रहेगा, अगर नहीं मिलता है तो तुम सूट अभी फाइल नहीं कर सकते सर, गार्जियंस के थ्रू भी अभी नहीं कर सकते, पहले आपको अलग होना पड़ेगा। यू जस्ट सेपरेट। क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन समझना पड़ेगा पहले क्या वो पूछ रहा है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिप्लाई। हाँ बेसिकली, क्योंकि सर क्या होता है वो खुद ही बेनिफिशियरी है और गार्जियन भी उसका बेनिफिशियरी हो गया वो एक तरीके से, तो वो इस तरीके से अलाउ नहीं किया है। बेसिकली उससे कुछ लिया तो है ही नहीं फर्म ने, फर्म उसको दे ही रही है, तो दे रही है। और उसको अगर कभी उसका शेयर नहीं मिला तो ही इज गिवन अ राइट टू फाइल अ सूट, बट द ओनली कंडीशन इज ही शुड फर्स्ट सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द फर्म एंड ओनली देन ही कैन फाइल अ सूट। गुड, थैंक यू। ठीक है सर, बेसिकली उसके गार्जियन उसके पेरेंट्स ही होते हैं जो फर्म में हैं ऑलरेडी। हम्म, कोई भी किसी और को माइनर को क्यों बनाएगा? नॉर्मली क्या होता है कि फादर ही अपने बेटे को एज अ पार्टनर ले लेता है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग गार्जियंस कोई ऐसे अलग से सूट फाइल करते भी नहीं है इस केस। ठीक है सर, वो तो यही है कि बेटा बड़ा हो गया और उसको लग रहा है बाद में कि मुझे मेरा शेयर नहीं मिला, तो वो केस फाइल कर देगा, ये है। नेक्स्ट, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, मैनेजरियल कमीशन, इस तरह के आपने देखे भी होंगे और क्वेश्चंस भी किए हुए होंगे, अगर कभी ध्यान है आपको 11th-12th में हम लोग या सीए कर रहे थे या जब भी आपने पढ़े होंगे, तो पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन आते थे अब उसमें होता था 10% मैनेजर्स कमीशन बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। तो वो उसको मैनेजर को कमीशन मिल रहा है इन द नेम ऑफ प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट उसको मिल रहा है, बट द पर्सन इज स्टिल अ मैनेजर, ही इज नॉट अ पार्टनर। ये यहाँ पे हम केसेस क्यों समझ रहे हैं, आप ध्यान से समझिए इस बात को। कई बार आपको ऐसा लगेगा कुछ सिचुएशंस में कि लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो पार्टनर ही है। तो प्रॉफिट शेयर करना पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट नहीं है। कैसे पता लगेगा कि वो पार्टनर है कि नहीं? म्यूचुअल एजेंसी है तो ही वो पार्टनर है। प्रॉफिट शेयर तो कोई भी कर सकता है, हम ये यहाँ पे बताना चाहते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट द ट्रू टेस्ट। द बेसिक टेस्ट whether a person is a partner or not is through this mutual agency, and this is covered in section 6. Okay, I'm just moving further. Again, one more definition, one more example is given. Widow or a child of a deceased partner. Suppose a partner has died and there is a condition in the partnership deed that as soon as the person dies, his legal heirs would be given, his widow or child would be given some kind of share from the firm, some kind of profit share from the firm for so many years. So in that case, the widow or child does not become a partner, they are simply getting the share of profits. They have no say in the business decisions. Next, what is the cardinal principle of partnership? What is the general rule of partnership? The general rule of partnership is every partner is the agent of the firm as well as principal for the other partners act. So mutual agency को ही हम cardinal principle कहते हैं। इसका एक केस लॉ दिया हुआ है, केडी कामत एंड कंपनी, जरा देख लीजिए इसके अंदर क्या बताया था। The Supreme Court has held that the two essential conditions to be satisfied are there should be an agreement to share profits as well as losses of the business, and important है, the business must be carried on by all or any one of them acting for all within the meaning of the definition of partnership under section 4. Basically इन्होंने बताया कि अग्रीमेंट होना जरूरी है। अग्रीमेंट मतलब ओरल रिटन कैसा भी हो सकता है, वो तो एक कंडीशन है। और ये म्यूचुअल एजेंसी, सेकंड पॉइंट बेसिकली बताता है कि म्यूचुअल एजेंसी के बिना पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। ये चीज यहाँ पे बताई थी इस केस लॉ के अंदर।
let's move further. Types of partnership. There are 4 kinds of partnership. Partnership at will, basically it has no fixed period. Partnership for fixed period, it is mentioned that it is dissolved after a fixed period. Suppose for 5 years we are entering into partnership, so it will be known as partnership for fixed term. Okay, let me just ask you a question here. Suppose we entered into a partnership for 5 years, and after 5 years we've forgotten this condition that we were having a partnership of 5 years. We are still carrying on the business. Even after the expiry of 5 years, we are still carrying on the business. So what is the status of our partnership firm? You can answer in the chat box. Will that be still considered a firm or not? Yeah, Prince Soni ji has answered it correctly. It will be converted into partnership at will now. It will not become illegal. You are not doing something illegal. The business is still legal. You are doing everything in the same fashion. It's just that the time period you have not followed. So the fixed term will be converted into partnership at will. So that is the case. The next two kind of partnerships are basically defining what kind of business you are doing. Suppose you are doing a single thing, like we have entered into a construction business. So that is a particular partnership. Only for the construction purpose, we have entered into partnership. Suppose with the construction, we are entering into other businesses as well, the verticals. In that case, it will be known as general partnership. So if you are having any kind of business, it is just that business does not matter. We will remain the partners forever. So in that case, it will be known as general partnership. Otherwise, it is known as a particular partnership. Normally, partnership deed में जब आप ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखते हैं कि आपने किस लिए ये बनाया है, पार्टनरशिप किस लिए बनाएंगे, तो उसमें हम लिखते हैं किस किस चीजों के लिए हम हमारा बिजनेस क्या क्या रहेगा. तो आपने जो उसमें लिखा है आप वो काम कर सकते हैं. बेसिकली ये होता है. तो चेंज करना है तो वो तो बाद में आप मेजॉरिटी डिसीजन से आपने चेंज कर लिया, वो अलग बात है. पर जो उसमें लिखा है आप वही काम कर सकते हैं क्योंकि पार्टनर्स ने उसी के लिए अग्री किया है. तो अगर आपने सपोज एक ही एक्टिविटी लिखी तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाएगी. आपने बहुत सारी एक्टिविटीज लिख दी कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो वो हो गई जनरल पार्टनरशिप. हम आगे ले लेते हैं. कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं आपके लिए. A partner can be admitted with the consent of any one of the partner. ऐसा है क्या? आप A, B, C, D कितने क्वेश्चंस हैं? A, B, C, D, E, F, G. आप लोग फटाफट से अगर आंसर कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा. हम चैट बॉक्स में देख भी सकते हैं या आप बोलेंगे तो मैं फटाफट ऐसा ही डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि फिर हमारा LLP नहीं हो पाएगा नहीं तो. तो पहला क्वेश्चन है, a partner can be admitted with the consent of any one of the partners. Is this true or false? पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ एनीवन. एनीवन नहीं होता, सभी की कंसेंट से ही एडमिशन होगा. जैसे माइनर में भी हमने पढ़ा था कंसेंट ऑफ ऑल. कोई भी एडमिशन होगा पार्टनरशिप में, इट विल बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. नेक्स्ट, वेदर अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म. अब ये क्या कंडीशनल आंसर है. इसमें होता क्या है, अगर रिटायर होने के समय उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, ठीक है, जैसे ही उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, he will not be liable for the acts of the firm. But suppose पब्लिक नोटिस दिया ही नहीं, तो नहीं दिया तो he will still be considered liable for the acts of the firm. क्योंकि बाकी लोगों को क्या पता कि ये रिटायर हो गया, वो लोग तो यही समझ रहे हैं कि अभी भी पार्टनर ही है. तो in the eyes of third parties, he will still be holding the position of a partner and therefore he will be liable for the acts of the firm. So the main condition is if he has given a public notice or the partnership firm has given a public notice that this person has retired, in that case retiring partner will not be liable. Otherwise he will always be liable for the acts of the firm. तो ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है. ये जरा हमेशा ध्यान रखें, आपके क्लाइंट्स को भी इन्फॉर्म करें अगर कोई भी रिटायर होता है तो ये पब्लिक नोटिस देना बड़ा जरूरी है. नेक्स्ट, कैन अ स्लीपिंग पार्टनर क्लेम अ शेयर ऑफ प्रॉफिट. अभी स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो रेगुलरली एक्टिवली बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता. तो क्या वो प्रॉफिट का शेयर ले सकता है? क्योंकि बाकी लोग कहेंगे हम तो रोज आते हैं ऑफिस, ये तो आता ही नहीं है, इसको क्यों देना है. लेकिन एक्ट कहता है स्लीपिंग पार्टनर को भी इक्वली जितना बाकियों को मिलता है या अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड है तो उतना इसको शेयर मिलेगा. ही कैन नॉट बी डिनाइड शेयर ऑफ प्रॉफिट. स्लीपिंग पार्टनर विल गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट. ओके, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. क्या स्लीपिंग पार्टनर जब रिटायर होगा क्या उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है?
इसका आंसर प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में कर दीजिए। स्लीपिंग पार्टनर अगर रिटायर होता है तो क्या उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? क्योंकि अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा रिटायरिंग पार्टनर कोई भी हो उसको पब्लिक नोटिस तो देना ही चाहिए। हाँ, लेकिन ये एक्सेप्शन है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर तो ऐसा है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये पार्टनर भी है। तो अगर वो रिटायरमेंट के समय पब्लिकली बोलेगा कि मैं हट रहा हूँ यहाँ से पार्टनरशिप से, तो ये शॉक हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, अच्छा ये पार्टनर भी था क्या। तो यहाँ पे लॉ में दिया हुआ है स्लीपिंग पार्टनर को जरूरत नहीं है उसके ये पब्लिक नोटिस देने के लिए। ही विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन इफ ही हैज नॉट गिवन पब्लिक नोटिस। इफ ही वांट्स ही कैन, पर मैंडेटरी नहीं है स्लीपिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना। ठीक है। नेक्स्ट, वेदर अ नॉमिनल पार्टनर इज लायबल टू आउटसाइडर्स। ये नॉमिनल पार्टनर कौन है? नॉमिनल पार्टनर फॉर द नेम से कहा है। जैसे हमने सपोज अमिताभ बच्चन जी को रख दिया आपने यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, उनको कोई इंटरेस्ट तो है नहीं हमारे बिजनेस में, पर हमने उन्हें इसलिए रखा कि उनकी गुडविल हम यूज कर सकें बेसिकली। तो वो नॉमिनल पार्टनर जो हैं, क्योंकि लोग तो उनका नाम देख के ही आए आपके फर्म की तरफ, उन्हीं ने बिजनेस तो हमने उन्हीं की गुडविल से लिया, तो क्या वो नॉमिनल पार्टनर लायबल हो जाएगा? तो क्या अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे लायबल हो जाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ फर्म कि भाई काम तो किया फर्म ने, लोन तो लिया फर्म ने, या कोई भी अग्रीमेंट तो किया फर्म ने, चुकाएंगे वो? क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। नॉमिनल पार्टनर इज लायबल टू द आउटसाइडर्स। हाउ कैन अ पर्सन बी एन इम्प्लाइड पार्टनर? अभी इम्प्लाइड पार्टनर क्या है ये आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह के पार्टनर्स के नाम आ रहे हैं। मेरे आगे की स्लाइड में आपको एक पूरा टॉपिक मिलेगा कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं, तो हम ये सारे नाम वहाँ पे देखेंगे वापस से कि स्लीपिंग पार्टनर कौन है, नॉमिनल कौन है। ये क्वेश्चंस आपको पहले इसलिए दिए कि आप थोड़ा सा एक बार एनालाइज करना की कोशिश करिए कि ऐसा पार्टनर है तो उसका पोजीशन क्या होगा, व्हाट विल बी हिज स्टेटस बेसिकली। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। इम्प्लाइड पार्टनर क्या होता है? एक तो होता है कि एक्सप्रेसली आपने किसी को पार्टनर बनाया, ठीक है, तो एक्सप्रेसली का क्या मतलब हुआ? अग्रीमेंट के थ्रू आपने पार्टनर बनाया। क्या आप पार्टनर बनोगे? हाँ, हम पार्टनर बनेंगे इस तरीके से। मंजू जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी मंजू जी बोलिए। मैम अनम्यूट कर लीजिए। आई डोंट नो आप कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ जी। अभी वो टॉपिक निकल गया तो बाद में क्वेश्चन कर लेंगे, तो यू कैन कंटिन्यू। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैम, मैंने देखा अभी आपको। ओके, इम्प्लाइड पार्टनर क्या होता है मैं आपको ये बता रही थी। एक हम क्विकली एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ABC फर्म में पार्टनर्स हैं, M उनका एक मैनेजर है। ये लोग कहीं बाहर जाते हैं, सपोज किसी पार्टी में गए। X कोई थर्ड पार्टी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, बहुत टाइम से वो कोई डील करना चाहते हैं ABC फर्म के साथ। उन्हें लगा इतना टाइम तो हो गया, बात हो नहीं पा रही, चलो ये पार्टी में मिल गए, इनको यहीं पे बात कर लेते हैं। तो पार्टी में ABC का मूड नहीं है X से बात करने का। वो कहते हैं कि यार आपको जो बताना है आप M को बता दो। देखिए X को नहीं पता कि इस पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हैं या क्या है। वो ये जानते हैं कि हाँ ये 3 लोग तो पार्टनर्स हैं ही, और कौन है कौन नहीं है पता नहीं। पर क्योंकि ABC खुद ही कह रहे हैं आपको जो बताना है आप M को बताइए, जो ये बोलेगा हम वैसा बात करके डिस्कस करके फाइनल कर देंगे। तो क्योंकि इसने खुद ही आगे बढ़ा दिया, ABC ने आगे बढ़ा दिया, इसे होल्डिंग आउट पार्टनर कहते हैं। यू हैव होल्ड आउट समवन एज अ पार्टनर। तो अब जो डील हो जाएगी X और M के साथ, उस केस में फर्म विल बी लायबल। सो M जो मैनेजर था, he takes up the position of an implied partner. Implied का मतलब by conduct और behavior आप पार्टनर बन गए। तो आपको कोई फोर्सफुली बना दे तो भी हो गया, और वो खुद ही आगे बढ़ के कह दे। सपोज M यहाँ पे इस सिचुएशन में ये कह देता ABC को आप मत परेशान करो, आप मुझे बता दो जो आपको बताना है। मतलब वो X को खुद डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है। एक तो था कि ABC ने उसको आगे बढ़ाया, दूसरा ऑप्शन ऐसा भी हो सकता था कि उसे पता है ABC बात नहीं करना चाहते X से, M खुद ही आगे बढ़ के कहता है आपको जो बात करनी है X आप मेरे साथ कर लीजिए, मैं ही करता धरता हूँ इनका, जो भी आप मुझे बोलोगे वो ही होगा इनके साथ, या मतलब हम ही डील फाइनल करते हैं। तो उसने आगे बढ़ के कर दिया, तो ये एस्टॉपल भी कहलाता है। तो एक होता है पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, एक होता है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। ये दोनों ही हैं केस किसके? इम्प्लाइड पार्टनर के। इम्प्लाइड पार्टनर किसी को आपने बाय कंडक्ट और बिहेवियर अपना पार्टनर बना दिया, ये यहाँ पे मतलब है सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर अ सब पार्टनर कैन बाइंड द फर्म। अब ये सब पार्टनर कौन होता है? पार्टनर का भी पार्टनर।
सपोज मैं किसी फर्म में पार्टनर हूँ, पर मैं सोचूं रेगुलर कौन जाएगा, कौन काम करेगा, तो मैंने अपना अथॉरिटी वगैरह डेलीगेट कर दिया मेरी एक फ्रेंड को कि तुम चले जाना यार, देख लेना जो भी है। पर वो मीटिंग्स वगैरह में अलाउ होगा कि नहीं, नहीं होगा, मीटिंग में नहीं कर सकते। पर जो मेरे को काम दिया था, मेरे को जो रोल दिया था, वो मैंने उसको डेलीगेट कर दिया। जो मुझे प्रॉफिट का शेयर मिल रहा था, मैं उसमें से अपनी फ्रेंड को दे रही हूँ। तो जो मेरी फ्रेंड है वो अभी क्या कहलाएगी, सब पार्टनर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है या पोजीशन समझिए आप, सब पार्टनर इज वन लेवल बिलो द पार्टनर। ए बी सी अगर पार्टनर्स हैं और डी एक सब पार्टनर है, तो वो डी सी के नीचे है, साथ साथ नहीं है। ए बी सी डी एक लाइन में नहीं है, वो एक लाइन बिलो है। तो जब एक लाइन बिलो है तो उसके पावर्स भी कम हैं। तो सब पार्टनर कुछ भी काम करेगा तो क्या वो फर्म को बाउंड कर देगा? सपोज सब पार्टनर ने कोई लोन लिया, तो क्या वो फर्म को बाउंड कर देगा? नहीं, उस केस में फर्म बाउंड नहीं होगी। सब पार्टनर के एक्ट से कोई बाउंड नहीं होता। फर्म, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लायबल। उनको पता भी नहीं है कि ये कोई है भी पर्सन, तो किसी अननोन पर्सन के लिए फर्म बाउंड नहीं होती है। पर एक पार्टनर को अथॉरिटी है, वो एक सब पार्टनर रख सकता है। पर फिर भी सब पार्टनर के किया गया कोई भी काम के लिए लायबिलिटी किसकी रहने वाली है? वो पार्टनर की खुद की रहेगी, जिसने उसको अपॉइंट किया था। ठीक है, तो उसने कुछ गलत काम किया तो भी जो पार्टनर है मेन, वो वहां पे लायबल रहेगा। ठीक है, वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने थोड़ी किया, ये तो उसने किया, ऐसे नहीं बोल सकता है, क्योंकि सब पार्टनर को उसी ने अपॉइंट किया था। बेसिकली तो उसी का काम था, पार्टनर का खुद का ही काम था जो उसने डेलीगेट कर दिया। तो डेलीगेट कर देने से आपकी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो जाती, ऐसा एजेंसी में आपने पढ़ा था। ये एजेंसी वाले टॉपिक से ही यहाँ पे गवर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैन अ पार्टनर अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म? देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी हमेशा ही। तो क्या एक एक्टिव पार्टनर, एक हम तो कहते हैं बिजनेस डिसीजंस कौन ले सकता है? जो एक्टिव पार्टनर है वो बिजनेस डिसीजन ले सकता है डे टू डे। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सिर्फ एक पार्टनर के कहने से इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जा सकती है क्या? द क्वेश्चन इज, द आंसर इज इन फैक्ट नो, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिसीजन तो सबका होना चाहिए। तो अलोन a partner can alone cannot take the decision of acquiring or selling the immovable property. Next question is, can a partner enter into a partnership on behalf of the firm? ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ तो पार्टनरशिप नहीं बना सकती, पर उनके जो पार्टनर्स हैं आपस में वो एक फर्म बना सकते हैं। स्टिल दे विल नॉट रिप्रेजेंट द फर्म। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? क्या एक पार्टनर, आप वापस पढ़िए, कैन अ पार्टनर एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट अ फर्म। आप फर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं फर्म की कोई भी। पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म आर वन एंड द सेम। तो इसीलिए आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो पार्टनर बन सकते हो, फर्म को रिप्रेजेंट करते हुए यू कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर जो अभी हमने ऊपर बात करी, ये आप आराम से स्लाइड में बाद में देख सकते हैं। एक्टिव पार्टनर बोल दीजिए, एक्चुअल ऑस्टेंसिबल एक ही बात है, जो एक्टिवली एंगेज है बिजनेस के सारे डिसीजन में काम करता है। ही इज ऑलवेज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर कौन होता है? जो इनएक्टिव रोल प्ले कर रहा है बेसिकली, उसको फिर भी प्रॉफिट का शेयर तो मिलेगा, ही इज स्टिल लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। पब्लिक नोटिस उसको देने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ लिख दिया है। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जिसने सिर्फ अपना नाम दिया है, उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, बट ही स्टिल लायबल टू दी आउटसाइडर्स। पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली हम जानते हैं। सब पार्टनर के बारे में अभी हमने बात करी ली। ये सब पार्टनर एजेंट, सब एजेंट वाला कंसेप्ट है। फिर नेक्स्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये भी अभी हमने जस्ट पढ़ लिया। इसमें हमने लिखा है इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन रिटायर्ड पार्टनर। इसका जरा मतलब समझ लीजिए। अगर एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है और उसने नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो अभी भी वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट चल रहा है। समझिए इसका मतलब, वो इम्प्लाइड पार्टनर है, क्योंकि लोगों की नजरों में तो वो अभी भी पार्टनर ही है ना, चाहे आपने उसको हटा दिया हो, तो ही इज स्टिल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इम्प्लाइड पार्टनर वो रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे। तो उसके काम से, क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया रिटायर्ड पार्टनर, तो ही विल मेक फर्म बाउंड बाय हिज एक्शंस। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑन पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। हमने स्टार्टिंग में एक बार टॉपिक जब बात करी थी तो हमने बोला था अथॉरिटी इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब लॉ ने आपको कुछ पावर्स दिए हैं, तो लॉ ने जो पावर्स दिए हैं आपको, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, ये काम आप नहीं कर सकते। एक मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा, एक मिनट। आप लोग ये एक बार जरा सा रीड करिए।
एक मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करती हूँ वापस। सॉरी, कुछ थोड़ा सा अर्जेंट था, सॉरी। हमने ये अभी बोला है कि कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए। ये क्या है, अगर आपने पढ़े हो तो 8 पॉइंट्स हैं ऑल टुगेदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हम इसको फास्ट भी लेंगे, आप थोड़ा समझिए। सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। हमारा टॉपिक क्या है, पहले आप टॉपिक समझिए। एज अ पार्टनर आपको कुछ तो एक्सप्रेस अथॉरिटी है, कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटी है। एक्सप्रेस मतलब जो कि डीड में लिखा हुआ है, ए ये काम करेगा, बी फाइनेंस देखेगा, ए परचेजेस देखेगा, सेल्स देखेगा, जो भी, तो वो तो हो गई एक्सप्रेस। कुछ चीजें होती है जो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको मिलती है कि आप एम्प्लॉय रख सकते हो, आप लोन ले सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, वगैरह वगैरह। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी का स्कोप बहुत वाइड है, क्योंकि क्या क्या काम की आपकी अथॉरिटी है, ये यहाँ पे एंडलेस है। तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये चीज आप नहीं कर सकते, इसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हो, नेगेटिव तरीके से लिखा हुआ है। तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। ये 8 पॉइंट्स जो आपको क्लियरली मना किए हुए हैं। तो बीइंग अ पार्टनर आप क्या क्या नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर आप कराना चाहते हो, कोई डिस्प्यूट है किसी पार्टी के साथ, तो हमें कोर्ट में जाना चाहिए। इट इज नॉट दैट वी आर गोइंग टू आर्बिट्रेशन। ये अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता पार्टनर का। हाँ, सारे पार्टनर्स मिलके तय कर रहे हैं कि हम आर्बिट्रेशन में जाना चाहेंगे, तो बिल्कुल जा सकते हो। देखिए, आप टॉपिक समझिए। आर्बिट्रेशन में जाने से मना नहीं कर रहा है पार्टनरशिप एक्ट, जा सकते हो, लेकिन अकेले एक पार्टनर अगर ये तय करता है कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे विदाउट आस्किंग, विदाउट गेटिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, उसको मना किया हुआ है। तो ये चीज बोला है, आप अगर डिस्प्यूट है, देन यू अलोन कैन नॉट टेक द डिसीजन टू गो इनटू आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। ये नहीं करना है, खुद के नाम से बैंक अकाउंट नहीं खोलना है। जनरली ऐसा करते हैं क्लाइंट्स। आपने एक नई पार्टनरशिप फर्म किसी की बनाई और वो कहते हैं कि ठीक है, स्टार्टिंग में अभी बैंक अकाउंट तो खुलने में टाइम लगेगा, तो जो भी ट्रांजैक्शन होना है वो मेरे ही अकाउंट में हो रहा है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के अकाउंट में ही हो रहा है। वो गलत है, वो नहीं हो सकता एज पर लॉ। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फर्म शुड हैव इट्स ओन बैंकिंग अकाउंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। ये यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टनर है, पहले आप ऐसे समझिए किसी फर्म का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ क्लेम उनको लेना है सामने वाली पार्टी से। सपोज 10 लाख रुपए लेने हैं किसी पार्टी से, ठीक है, तो सामने वाली पार्टी कहती है नहीं आप तो 8 में सेटल कर लो। किससे बात हो रही है, जो एक्टिव पार्टनर है उससे बात हो रही है। अब एक्टिव पार्टनर अपने मन में कह रहे हैं कि ठीक है यार, बाकियों को क्यों पूछना, मैं खुद ही डिसीजन ले लेता हूँ, ये 8 तो दे रहा है, थोड़े दिन में 8 भी नहीं मिलेंगे। कर तो वो भले के लिए रहा है, फर्म के बेनिफिट के लिए रहा है, बट स्टिल ही कैन नॉट टेक दैट डिसीजन, ही कैन नॉट रिलिंक्विश और ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। वो फर्म का टोटल डिसीजन होना चाहिए, अकेले वो स्टैंड नहीं ले सकता कि हम कम ले लेंगे किसी पर्सन से, ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म ने किसी पे केस फाइल किया, अब एक पार्टनर सोचता है कि नाम खराब कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं फर्म का, बेटर है कि हमें उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो विड्रॉ करने के भी राइट्स किसी एक पार्टनर के पास नहीं है, वो इन टोटल डिसीजन होना चाहिए, मेजोरिटी नहीं, 100% पार्टनर्स का डिसीजन होगा, तभी यहाँ पर आप विड्रॉ कर सकते हो केस। फिर नेक्स्ट है, एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। देखिए, डी वाला पॉइंट कहता था आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, और ये यहाँ कहता है एडमिट नहीं कर सकते हो। वापस से समझिए मतलब क्या हुआ। जो थर्ड पार्टी है वो एलिगेशन लगा रही है फर्म के ऊपर कि आपका इतना अमाउंट पेंडिंग है, आपको ये अमाउंट पे करना है, ठीक है। अब जो एक्टिव पार्टनर है, सपोज वो सोचता है कौन रोज रोज कोर्ट वगैरह जाएगा और कौन इस लफड़े में पड़ेगा, ठीक है चलो लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कर देंगे पे। तो अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता, कोई भी अगर एडमिट कर रहे हो आप लाइबिलिटी,
तो वो चीज अलाउड नहीं है. इट हैज टू बी अ डिसीजन इन टोटलिटी. नेक्स्ट एफ, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी. एफ और जी एक साथ ही ले रही हूँ मैं. यह भी हमने क्वेश्चंस में देखा था. इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का राइट किसी एक अकेले पार्टनर के पास नहीं होगा, क्योंकि ये फर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है अल्टीमेटली. तो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म आप डिसीजन अकेले नहीं ले सकते यहाँ पे. देखिए वैसे तो हमने बोला था ना, एक्ट बाय एनी वन ऑफ देम और बाय ऑल. म्यूचुअल एजेंसी यही तो होती थी, कोई एक पार्टनर भी डिसीजन ले सकता है, कर सकता है, पर ये काम मना कर रखे हैं, ये आप नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट एक और पॉइंट जो है यहाँ पे, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. वो क्लियर मना करा हुआ है कि फर्म का नाम लेके आप कहीं और पार्टनर बन रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है. कि क्योंकि क्या होता है, जब आप ऑन बिहाफ ऑफ काम करते हो तो हम ये कह रहे हैं कि हम तो उसके एजेंट है, खाली लाइबिलिटी किसकी होगी, फर्म की. तो वो ये मना कर दिया, फर्म के बिहाफ पे आपको कहीं पे कोई इस तरह का काम करना ही नहीं है कि जहाँ पे आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाए. ठीक है, फर्म के ऊपर लाइबिलिटी आ जाए बेसिकली. तो ये 8 पॉइंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो बताते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म. हमको पता है कंपलसरी नहीं है, सेक्शन 58 ये कहता है कभी भी करवा सकते हो आप रजिस्ट्रेशन. एक इसमें बहुत अच्छा पॉइंट जो पहले भी डिस्कशन में इस तरीके से आया था. सपोज हमारी फर्म है, रजिस्टर्ड नहीं है, किसी ने हम पे केस फाइल कर दिया. तो अगर हम पे केस फाइल कर दिया तो हमारे पास क्या बेनिफिट है, हम क्या कर सकते हैं मतलब उस केस के अंदर. या हमारा, उसको उल्टा ले लीजिए, हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड है और सामने वाली पार्टी हमें पे नहीं कर रही है, बहुत टाइम से आउटस्टैंडिंग चल रहा है, हम केस करना चाहते हैं उसके ऊपर. क्या हम केस फाइल कर सकते हैं? आप समझिए यहाँ पे जो हम इंसॉल्वेंसी से इसको कोरिलेट करते हैं. एक फर्म ने कंपनी को लोन दे रखा है. ठीक है, एक फर्म ने कोई, आप मान लीजिए ऑपरेशनल क्रेडिटर मान लीजिए या फाइनेंशियल क्रेडिटर मान लीजिए, जैसा भी. अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर बोलूं तो कुछ ना कुछ उसने सप्लाई किया है, एक फर्म ने कुछ सप्लाई किया है कंपनी को. अब कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है बहुत समय से, तो क्या फर्म उसके ऊपर केस फाइल कर सकती है? फर्म अनरजिस्टर्ड है तो वो केस फाइल नहीं कर पाएगी, ये मना है यहाँ पे. लेकिन अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो वो केस फाइल कर सकती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. फिर वो आपका आईबीसी में कंडीशंस होती हैं कि इतना अमाउंट से ज्यादा का क्लेम होगा तो आप कर सकते हो, वो वाली बात. पर यहाँ पॉइंट क्या है, आप समझिए. अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली आप केस फाइल नहीं कर सकते, पर उन्होंने सोचा, पता लगाया कि अरे रजिस्ट्रेशन कर लेते अगर हम, तो हम केस फाइल कर सकते. तो क्या आज हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? फर्म को बने हुए हो गए 10 साल. क्या अब आप आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, देयर इज नो टाइम लिमिट. सिर्फ वो बोला है कि आपको पर ईयर, ये आप लास्ट वाला पॉइंट पढ़िए, लेट रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो पेनल्टी है 100 रुपीज पर ईयर, जो कि बहुत ही मिनिमम है. तो ठीक है, आज हमने रजिस्टर कर लिया, तो आज रजिस्टर कर लिया, तो अब क्या हम अपने पुराने केसेस जहां जहां भी हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उनके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो. लेकिन वो आप लिमिटेशन एक्ट का ध्यान रखिए, वो 3 साल नहीं हो जाने चाहिए. अगर 3 साल हो चुके तो वो लिमिटेशन से बाहर हो गया, फिर आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे. So within the limitation of the time, you can still file a case. Earlier, if you were not registered, now you can get yourself registered and then you can file a suit. ये बहुत important point है यहाँ पे. ठीक है, हम आगे चलते हैं. बेसिकली 69 में यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा. द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज. ये हमें पता ही है, फर्म तो थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकती, पर थर्ड पार्टी तो हम पे केस फाइल कर सकते हैं. पार्टनर्स ऑफ द फर्म कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ. सेट ऑफ नहीं मांग सकते हैं. अब ये सेट ऑफ क्या होगा ये मैं आपको 1 मिनट बाद बताती हूँ, पहले थर्ड वाला पॉइंट ले लेते हैं. The partners cannot file a suit against the firm or the other partners. Partners आपस में एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, पार्टनर्स फर्म पे भी केस फाइल नहीं कर सकते. फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट पॉइंट कहता है फर्म एज अ होल थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती. अब फर्म में आपस में पार्टनर्स एक दूसरे पे केस कर सकते हैं क्या? अगर अनरजिस्टर्ड है फर्म तो वो भी मना कर दिया, वो सी वाले पॉइंट में लिख दिया. न तो पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर पे केस कर सकती है और ना ही पार्टनर्स आपस में एक दूसरे पे केस कर सकते हैं अगर अनरजिस्टर्ड है तो. ठीक है, वो डिसोल्यूशन के लिए कर सकते हैं, वो बात एक्सेप्शन में चला जाता है. बी पॉइंट पे आते हैं हम. यहाँ पे सेट ऑफ का क्या मतलब है? सेट ऑफ का मतलब आप ऐसे समझिए, एक फर्म है, उनका करंट अकाउंट चल रहा है, किसी के साथ परचेज भी कर रहे हैं किसी पार्टी के साथ, और उसको सेल भी करते हैं, उससे रॉ मटेरियल परचेज भी करते हैं और उसको कुछ फिनिश गुड सेल भी करते हैं. तो आप अपने अकाउंट सेटल करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, बीच बीच में आप कुछ पेमेंट वगैरह नहीं करते.
तो कहना क्या चाह रहे हैं, वो जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज वो कंपनी है, आप फर्म है और वो कंपनी है, आप तो अनरजिस्टर्ड हैं, कंपनी को तो रजिस्टर होना ही पड़ता है, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपका उनके साथ डेली अकाउंट चल रहा है इस तरीके से। तो जब आप उन पे केस करना चाहते हैं, आप तो अनरजिस्टर्ड हैं, आप तो केस कर ही नहीं सकते, तो वो चीज बोला है कि केस तो आप नहीं कर सकते, लेकिन सपोज उन्होंने बोला कि हमारा सपोज उनसे आप मांगते थे 10 लाख और आप उन्हें देते हैं 8 लाख, मुझे उन्हें 8 लाख देना है और उनसे मुझे 10 लाख लेना है, तो देखा जाए तो 2 लाख का ही तो नेट डिफरेंस है जिसके बारे में लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो आप ये सेट ऑफ वाली बात नहीं मान पाएंगे, जब कोर्ट में केस करेगी वो कंपनी आपके ऊपर, वो तो पूरे 10 लाख के लिए या 8 लाख जो भी अमाउंट है बड़ा, उसके लिए केस करेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि साइमल्टेनियसली हमने भी तो दे रखा है उनको, तो हमें वो नेट ऑफ तो करिए, वो नेट ऑफ नहीं मिलेगा आपको, आपके ऊपर तो पूरा 10 लाख या 8 लाख जो भी है पूरा केस फाइल होगा, आप वहां पे सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये चीज यहाँ पे बोली जाती है। 100 रुपए तक का सेट ऑफ अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है, तो 100 का तो वैसे ही कोई नहीं लेगा, तो वो एक सिंपल सी बात है। सेट ऑफ का सिंपली मीनिंग आप फुल अमाउंट के लिए वहां पे लायबल हो जाते हैं, यू कैन नॉट से दैट हमारी तरफ से भी तो कुछ अमाउंट हमने उनको दे रखा है, उसका हमें बेनिफिट दे दीजिए, वो बेनिफिट यहाँ पे डिनाई हो जाता है, सिंपली मीनिंग। द डिसेबिलिटी ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, जो अभी हम बात कर रहे थे, कैन बी रिमूव बाय गेटिंग द फर्म रजिस्टर्ड बिफोर फाइलिंग द सूट, कि जैसे ही आप रजिस्टर हो जाएंगे आप आराम से सूट फाइल कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप लेट फाइन वो जो 100 रुपए पर ईयर है वो दीजिए और आराम से जब चाहे तब रजिस्टर हो जाइए। पर अभी एट टुडेज टाइम अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो में, जैसे ही कोई फर्म बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म, आप उसको रजिस्टर करवाइए, ये बहुत सब जगह अभी यही ट्रेंड है कि फर्म को रजिस्टर किए बिना आगे प्रोसीडिंग नहीं होती है, क्योंकि पता ही है ना लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे तो कैसे आप उसको फेस करोगे। So it is always better to advise your client to get yourself registered. Next, consequences of non-registered, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही चीज लिखी हुई है बेसिकली, हम आगे आ जाते हैं एक बार। Can an unregistered partnership file for CIRP against a corporate debtor? ये अभी हमने जस्ट बात करी थी कि आप खुद तो अनरजिस्टर्ड हो और CIRP फाइल करना चाहते हो किसी कंपनी पे, तो वो वाली चीज के लिए केस हुआ है, जरा इसका देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। Messrs. Shridev Chemicals Corporation versus Gammon India Limited. Unregistered partnerships right to file for insolvency proceeding as an operational creditor overriding the exception created under section 69(2) of the Indian Partnership Act. Demarcation between suit and proceeding, ये दोनों वर्ड्स इन्होंने डिफरेंशिएट किए थे, सूट क्या होता है, प्रोसीडिंग क्या होता है। आप देखिए अभी ऊपर हमने बोला सूट फाइल नहीं कर सकते, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम ये जो आईबीसी है, आईबीसी की एप्लीकेशन, मतलब जो ये सेक्शन 7 की या सेक्शन 9 की यहाँ पे हम एप्लीकेशन दे सकते हैं क्या? ये एप्लीकेशन देना प्रोसीडिंग कहलाता है, दिस इज नॉट सूट। तो प्रोसीडिंग कर सकते हैं, सूट फाइल करना अलाउड नहीं है। तो वापस जो अभी हमने बात कर रही थी, आप अनरजिस्टर्ड हैं, सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, वेदर दैट एप्लीकेशन प्रोसीडिंग इज अलाउड और नॉट, अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी अलाउड है, क्योंकि ये सूट नहीं है, ये क्या है, प्रोसीडिंग है, ये बेसिकली यहाँ पे समझाया है। तो सूट क्या होता है, प्रोसीडिंग क्या होता है, वो बेसिकली समझाया है इन डिटेल। तो सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 69(2) ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन आईबीसी में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दी है। ये लास्ट वाला पॉइंट और पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ बीके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स held that an application for CIRP would not constitute a suit। तो सूट नहीं है, प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग करना तो अलाउड है, तो हम प्रोसीडिंग कर सकते हैं, सूट होता तो हम फाइल नहीं कर पाते, ये सिंपल सी बात होगी। आई होप इट इज क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि टॉपिक्स अभी इसी में बहुत सारे हैं, हम एलएलपी नेक्स्ट सेशन में ले लें क्या, इफ एनीवन इज नॉट हैविंग एनी इशू? बिल्कुल ठीक है मैडम, हाँ जी, एलएलपी नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, और जैसा आपको कंफर्ट हो, अगर आप यही वाइंड अप करना चाहती हैं यहाँ भी कर सकती हैं, वी कैन। थोड़ा सा ही बाकी है, ये तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ जी, ओके ओके, क्योंकि वो ज्यादा एक साथ फिर डाइजेस्ट ही नहीं होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हमने देख लिया, एक सेकेंड।
ये वाला हम देख चुके हैं. नेक्स्ट स्लाइड है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मीनिंग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर. देखिए एडमिशन रिटायरमेंट वर्ड्स तो आपको आते हैं. एक्सपल्शन क्या होता है? एक्सपल्शन मतलब निकाल देना, एक्सपेल कर देना. इसमें आप ऐसा केस समझिए, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, सी को निकालना चाहते हैं हम. वो खुद तो रिटायर नहीं हो रहा, पर वो काम ही ऐसा कर रहा है कि ए और बी को पसंद नहीं आ रहा. जब देखो तब तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करके आ जाता है, गलत ट्रांजैक्शंस कर लेता है, फर्म का नाम खराब कर रहा है. तो क्या ए और बी मिलके सी को हटा सकते हैं, या एक्सपल्शन अलाउड ही नहीं है? तो उसके लिए सेक्शन 33 है. एक्सपल्शन अलाउड है लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं. यू कैन एक्सपेल अ पार्टनर बट इट इज बेस्ड ऑन सम कंडीशंस. वैसे अगर आप राइट्स देखेंगे पार्टनर्स का, तो उस राइट्स में लिखा होता है अ पार्टनर शुड नॉट बी एक्सपेल्ड. ये उसका राइट है, ही शुड नॉट बी एक्सपेल्ड. लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33, इफ दीज कंडीशंस जो अभी हम बात करेंगे, इफ दीज कंडीशंस आर मेट आउट, इन दैट केस अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड. तो वो कंडीशंस क्या है? बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स. फर्स्ट थिंग इज बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स. एक सिंपल एक पार्टनर सोचे कि वो दूसरे को हटा दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मेजॉरिटी डिसीजन चलेगा यहाँ पे. 100% भी नहीं बोला है, मेजॉरिटी बोला है. ठीक है, तो मेजॉरिटी पार्टनर्स अगर चाहते हैं तो वो एक्सपेल कर सकते हैं. लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है गुड फेथ. गुड फेथ का मतलब ये हुआ कि इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म. अगर हम नहीं हटाएंगे तो कुछ और गड़बड़ करता रहेगा. गुड फेथ का मतलब ये भी हुआ कि हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया था, हमने उसको नोटिस दे दिया था कि देखो भाई तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें एक्सपेल कर देंगे. या हमने उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया. ऐसे नहीं कल से मत आना, इस तरीके से नहीं निकाल सकते आप. तो एक्सपेल करने का भी तरीका है. गुड फेथ पे आप उसको निकालोगे, नोटिस दोगे पहले, और फिर उसको पूरा कहने सुनने का मौका दिया जाएगा, एंड देन बाय द मेजॉरिटी डिसीजन यू कैन एक्सपेल अ पार्टनर. सपोज आपने किसी को इलीगल तरीके से एक्सपेल कर दिया. अभी इलीगल तरीके से एक्सपेल कर दिया मतलब यू हैव नॉट फॉलोड सेक्शन 33. इन दैट केस दैट एक्सपेल्शन इज इनवैलिड. वो लॉ के नजरों में तो वैलिड ही नहीं है. दैट मीन्स वो पार्टनर अभी भी एज इट इज फर्म में उसी स्टेटस पे है, चाहे आपने उसे एक्सपेल कर दिया हो, पर उसके पास सारे राइट्स हैं. ही कैन स्टिल क्लेम शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाटएवर. और अगर किसी को आपने सही तरीके से एक्सपेल किया है, लीगली आपने किसी को एक्सपेल किया है, तो वहां पे एक्सपल्शन इज इक्वल टू रिटायरमेंट हो जाता है. एक्सपल्शन इज इक्वल टू रिटायरमेंट का क्या मतलब हुआ? जो रिटायरमेंट के टाइम पे सारा करते हैं, शेयर ऑफ गुडविल उसको देते हैं, या जो भी आपने उसको प्रॉफिट्स का शेयर देके अलग किया, जो भी बातें हैं, तो एक्सपल्शन बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा कि नॉर्मल रिटायरमेंट चलता है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर? ये आउटगोइंग मतलब रिटायरिंग पार्टनर के ही 36 37 में दिए हुए हैं दो बातें. एक तो ये कि अगर उसका कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह जाता है फर्म में, फर्म ने उसको पूरी कैपिटल नहीं पे की, तो फिर वो लोन की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको 6% पर एनम के हिसाब से, और प्रॉफिट व्हाटएवर ही वांट्स टू टेक ही कैन टेक. ये आउटगोइंग पार्टनर का राइट होता है. दूसरी एक और बात, अगर रिटायरिंग पार्टनर चाहे तो he can enter into competing business. At the time when he was a partner with the firm, he cannot enter into a competing business. But as soon as he retires from the partnership firm, he can enter into a competing business, provided उसको specifically मना नहीं किया था. भाई जब आप रिटायर होते हो तो एक रिटायरमेंट डीड भी बन सकती है. तो रिटायरमेंट डीड में अगर आपने क्लॉज डाल दिया कि इस पार्टनर को हम बोल रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं कि ये हमारा वाला बिजनेस नहीं करेगा, और जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन ये बिजनेस नहीं कैरी ऑन करेगा, तो उस केस में ये आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक आता है वहां पे रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड. आप किसी को काम करने से रोक नहीं सकते हो, पर यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये एक्सेप्शन में दिया हुआ है, आउटगोइंग पार्टनर को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो बिकॉज इट इज इन द बेनिफिट ऑफ द फर्म. उसको सारे सीक्रेट्स पता है, वो जब चाहे तब अपनी नई फर्म खोल के या अपना नया बिजनेस खोल के आपके सारे कस्टमर्स को सॉलिसिट कर देगा या जो भी, तो वहां उसको कंपीटिंग बिजनेस के लिए आप मना कर सकते हो. पर अगर मना नहीं किया है, देन ही हैज द राइट टू एंटर इनटू कंपीटिंग बिजनेस. नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर. अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन का है बस, कि हम ऐसा कहते भी हैं कि सपोज एबीसी पार्टनर हैं, सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो सी के इंसॉल्वेंट होते ही क्या पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप हो जाएगी? ये जरा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन रहता है अगर क्लैरिटी इसमें नहीं है तो. एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से सेक्शन 34 तो कहता है इंसॉल्वेंट होते ही फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी. लेकिन अगर आपने डीड के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इंसॉल्वेंसी से पार्टनरशिप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल स्टिल कैरी ऑन,
तो फिर उस केस में पार्टनरशिप कैरी ऑन हो जाती है। एज पर द लॉ अगर कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी आप डीड बनाएं तो कुछ इन पॉइंट्स का ध्यान रख लीजिए सो दैट फर्म विल नॉट गेट डिसॉल्व। नेक्स्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। सपोज अ पार्टनर हैज डाइड, क्या उससे फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? तो सेक्शन 35 तो कहता है हाँ हो जाएगी, लेकिन फिर से वही, अगर आपने डीड में स्पेसिफिकली लिख रखा है कि डेथ से हमारी फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस वो 2 ही पार्टनर्स थे और एक की डेथ हो गई, तब तो ऑब्वियसली फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। हम वो वाला केस नहीं ले रहे। तो 3 पार्टनर्स हैं या 4 पार्टनर्स हैं, एक की डेथ हो गई, then the remaining partners will still carry on the firm. If you have this as your condition in the deed, then you can carry on. Otherwise law तो कहता है कि डेथ होते ही क्या हो जाएगी, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी, जो गारंटी का टॉपिक आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो गारंटीज ऑफ 2 टाइप्स, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए होती है और कंटिन्यूइंग अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए होती है। सपोज हमने कहा इस साल में आप जितने भी लोन लोगे उन सबके लिए मैं गारंटी देती हूँ, तो ये कहलाती है कंटिन्यूइंग गारंटी। अब ये कह क्या रहे हैं इस टॉपिक के अंदर 38 के अंदर, एक फर्म ने गारंटी ली है या किसी ने फर्म की गारंटी ली है, कंटिन्यूइंग गारंटी, कि फर्म जब भी कोई लोन लेगी तो हम गारंटी देते हैं। तो फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई एडमिशन हो गया, कोई रिटायर हो गया, इस तरीके से। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कंटिन्यूइंग गारंटी वहीं पे क्या हो जाती है, रिवोक, इट कम्स टू एन एंड। क्यों? क्योंकि जब गारंटी दी गई थी तब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और था, आपके पार्टनर्स थे ए बी सी। अब सपोज सी हट गया, ए और बी ही रह गए, या ए बी डी आ गया, तो उस केस में जो श्योरिटी है वो कहता है मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, मैं ये कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो लॉ खुद ही कह देता है यहाँ पे कि 38 सेक्शन में ये लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती गारंटी दी तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर कभी बीच में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है फर्म का, इन दैट केस दिस कंटिन्यूइंग गारंटी विल कम टू एन एंड। ये यहाँ पे सेक्शन 38 के अंदर लिखा हुआ है। मूविंग फर्दर, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्म कैसे कैसे डिसॉल्व होती है, मीनिंग सिंपल आपको पता ही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप का इनका रिलेशनशिप था वो खत्म हो जाए सारे पार्टनर्स के बीच में, तो ये कहलाएगा डिसोल्यूशन। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ये आपको दिए हुए हैं 40, 41, 42, 43, 44। तो डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, बाय अग्रीमेंट तो म्यूचुअल अग्रीमेंट सबने मिलकर तय किया, चलो खत्म करते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। कंपलसरी डिसोल्यूशन, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो गए कि आप इलीगल बिजनेस करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा, या कोर्ट का एक्शन हो गया, कंपलसरी डिसोल्यूशन। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी, या कंटिंजेंसी डेथ वगैरह भी हो सकती है, तो कुछ केस ऐसा हो गया तो आपका यहाँ पे डिसोल्यूशन हो जाएगा। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। देखिए पार्टनरशिप एट विल में क्या मतलब है, एंडलेस है पार्टनरशिप, तो चलती रहेगी, तो फिर वो खत्म कैसे होगी? तो उसको पार्टनरशिप एट विल को खत्म करने के लिए किस तरीके से खत्म किया जाता है, बाय नोटिस। अभी नोटिस कौन किसको देगा, any one partner can give notice to other partner, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। any of the partners can give notice to other partners if he wants to dissolve the firm। ये कब, पार्टनरशिप एक्ट विल के केस के अंदर। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट कुछ कुछ सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर यहाँ पे डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है। अब ये जो है 41 सेक्शन जो अभी आपने यहाँ पे ऊपर देखा, ओरिजिनली तो था कंपलसरी डिसोल्यूशन दिया हुआ, लेकिन अभी ये सेक्शन में चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ आईबीसी। आईबीसी में ये पॉइंट जब वहां पे डाला गया, क्योंकि आईबीसी में भी आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी बैंकरप्सी वाले प्रोविजंस हैं, बैंकरप्सी और जो भी आप बोलते हैं एक अलग सेपरेट, उसमें पार्ट 3 और पार्ट 4 इसी पे ही चल रहा है, तो फिर वो चीज बोली है यहाँ पे पार्ट 3 बेसिकली। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 में क्या है जो आपने अभी पढ़ा था, फर्म कैसे डिसॉल्व होती थी, बाय एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स बट वन इज इंसॉल्वेंट। कहने का मतलब सारे पार्टनर्स, अगर सपोज 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से 2 इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो उस केस को यहाँ से हटा दिया गया है। इंसॉल्वेंसी वाले जो भी पॉइंट है उनको यहाँ से इस एक्ट से ही हटा दिया है, क्योंकि अब उसको कहाँ ले गए हैं, इंसॉल्वेंसी जो बैंकरप्सी कोड है वहां पे चला गया। तो अब ये वाला प्रोविजन सेक्शन 41 में चेंज हो गया है, दूसरा प्रोविजन अभी भी है। तो सेक्शन 41 जो अभी हमने पढ़ा था, कंपलसरी डिसोल्यूशन कब कब होता है, तो ये 2 चीजें थी जब कंपलसरी डिसोल्यूशन होता था, इंसॉल्वेंसी वाला केस, और ये दूसरा अभी जो नीचे लिखा हुआ है, बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हिच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ
फर्म। तो अनलॉफुल बिजनेस वाला तो अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर अनलॉफुल बिजनेस करने लग गए आप कभी बाय चांस, तो कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा, ये यहाँ सेक्शन 41 कहता है। पर इंसॉल्वेंसी वाला जो पॉइंट यहाँ हुआ करता था, दैट हैज बीन चेंज, दैट हैज बीन अमेंडेड। अब ये प्रोविजन कहाँ चला गया आपका, आईबीसी में चला गया। तो इंसॉल्वेंसी अगर होगा तो वहां पे टेकअप किया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी एज पर आईबीसी। अब आईबीसी के हिसाब से अगर हम देखें तो पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें आती है, सेक्शन 2 क्या कहता है, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड शैल अप्लाई टू पार्टनरशिप फर्म्स एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। एफ पॉइंट जो होता है इसका वो ये लिखा होता है। एप्लीकेशन में आपको पूरा बताया हुआ है कि कंपनी पे भी लगेगा, फर्म्स पे भी लगेगा, किस किस पे लगेगा। तो उसमें एफ पॉइंट पे जाके पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेपरेट चैप्टर ही यहाँ पे दिया हुआ है पार्टनरशिप के लिए, फर्म्स के लिए, बेसिकली फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स के लिए एक अलग ही चैप्टर है आपका, पार्ट 3 इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंकरप्सी। ये हम देखते हैं। तो हम ये बेसिकली अब लिंक कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म का क्या प्रोविजंस वहां दिए हुए हैं आईबीसी के अंदर। तो वो हम बात कर रहे हैं आईबीसी में। सेक्शन 2 कहता है कि इट इज एप्लीकेबल ऑन फर्म्स। दूसरी बात, पूरा का पूरा पार्ट 3 जो कि अभी नोटिफाई ही नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक, अभी उसके प्रोविजन जो लिखे हुए हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली थ्योरी आप पढ़ लीजिए, पर अभी उसमें से कुछ भी उसके रूल्स वगैरह नहीं बने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने हैं, तो तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पर इन पे भी लगता है, ये सिंपल सी बात है। बस ये प्रेजेंटेशन सर यहीं तक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स हैं प्लीज आप पूछ सकते हैं। कुछ चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है। पब्लिक नोटिस क्या है, आप अनम्यूट करके डायरेक्ट पूछ लीजिए, वो बेटर रहेगा। प्रेजेंटेशन सर आप शेयर कर ही दीजिएगा मेरी, ओके जी, ठीक है मैडम। है ना। और मेरे हिसाब से आप ग्रुप में भी ऑलरेडी एडेड हैं, तो मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस इन द ग्रुप हाँ आल्सो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पर सर है क्या ना होता है जी? कई बार मैं व्हाट्सएप देख नहीं पाती, तो फिर वो हाँ जी, हाँ जी। आपके मैसेजेस भी सर 100 मैसेजेस चले जाते हैं एक दिन में, तो वो थोड़ा सा है। हाँ जी, हाँ जी। आईबीसी एग्जाम के लिए देखिए ऐसा है कि कोई बुक, इसमें बेसिकली तो सर पढ़ा रहे हैं वो सारे आप अच्छे से सेशंस अटेंड करिए। जितने आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करें, पर आप थोड़ा सेलेक्टिव स्टडी पे ध्यान दीजिए। क्या होता है कि अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 1 नंबर का है, पता नहीं वो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा भी कि नहीं आएगा, और आप अननेसेसरी उस पर टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता। हमें ज्यादा फोकस आईबीसी पे ही करना है। आईबीसी का जो पार्ट है वो हमारा 50% से ज्यादा कैरी करता है, तो 50-60% तो आपका वहीं से ही क्लियर हो जाएगा। ये बाकी सारे जो सेशंस, बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो देखिए थोड़ा बहुत तो हमें पता ही है, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल, तो इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, पर हाँ ठीक है, जनरल नॉलेज तो हमको है ही। तो कुछ एक टॉपिक्स आप सिलेक्टेड पढ़ लीजिए। जैसे पार्टनरशिप की तो केस स्टडी भी आती है, एलएलपी पार्टनरशिप, इस पे आप फोकस कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट पे कर सकते हैं। पर ये जो आपका रेरा है, जीएसटी है, इनको आप एक एक दो दो नंबर के लिए, मतलब मैं तो ये कहूँगी आप छोड़ सकते हो अननेसेसरी, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं होता कि हम बैठ के पढ़े ही जाएं खाली। पर लेकिन मैडम ऐसा है ना, इसमें हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं और पीपीटी भी है। मैं तो हाँ। मेंबर्स को कहता हूँ भाई उतना पीपीटी देख लो उसकी और वीडियो लेक्चर बिल्कुल सुन लो। बिल्कुल बिल्कुल, वो मोर देन सफिशिएंट है सर। मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए हाँ वो जी, हाँ अपने जी, आप सारा आइडिया आ जाएगा उसके अंदर। आपको हम्म। अलग से मतलब बुक्स देखें, बैठ के खुद पढ़ें, उससे बेटर हाँ है आप हाँ। ये वीडियो लेक्चर देखिए, पीपीटी हम्म देखिए, उसमें क्रक्स दिया हुआ है बिल्कुल उसका, हम्म जिसपे क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक पे। पार्टनरशिप की केस स्टडी की कोई बुक तो नहीं है, पर बस वही जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें अननेसेसरी मैं वही कहूंगी बार बार आपको कि टाइम वेस्ट ना करें, सर के पास है ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल, तो अलग से बुक की कोई जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है, जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए इन्हीं पे घुमा फिरा के क्वेश्चन बना देते हैं, केसेस बना देते हैं, तो अलग से आप उसकी बुक पे मत जाइए, क्योंकि वो 4-5 नंबर के लिए आप दिमाग लगाओगे, उसके बजाय आप आईबीसी पे फोकस करिए, जो मेन जो है चीज। और अब तो मैडम मेंबर्स की फैसिलिटी के लिए हमने क्या किया है, 80 घंटे के वीडियो लेक्चर कंपाइल कर दिए हैं। अच्छा, और भी और बढ़िया सर। और वो सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे कोई हमारा ग्रुप का मेंबर है या नहीं है, वो तो यूट्यूब पर डाल अच्छा दिया हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत ही अच्छा सर, बहुत तो ही उससे अच्छा। क्या है जी कि वहां से अपने आप देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाते हैं।
बिल्कुल, मतलब इतना अननेसेसरी आप लोग प्लीज ये मत सोचिए कि मैं ये क्वेश्चंस कहाँ से लाऊं, ये क्वेश्चंस कहाँ से लाऊं। इतना दिमाग लगाने की बजाय आप, हाँ बिल्कुल सर, पीपीटी बिल्कुल सफिशिएंट है, सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं, क्योंकि ऐसे तो पढ़ने के लिए एंडलेस है। आप ऐसा है कि आप देखिए, अगर मैं सीपीटी की बात करूं सीए में, तो ये कैरी करता है 10 मार्क्स वहां पे, और उसके लिए फिर पूरा आप एक्ट करते हो, और यहाँ पे हमारे आईबीसी में एक कोर्स आ रहा है छोटा सा। तो देखा जाए तो पढ़ने को बहुत कुछ है, पर हमें अपने टाइम की भी वैल्यू समझनी है। और क्या है कि अब हम स्टूडेंट नहीं हैं, अब हम प्रोफेशनल हैं, तो हम एंडलेस तो नहीं पढ़ सकते, दिमाग में नहीं जाता। एट द एंड ऑफ द डे हमें वही लगता है हमारा काम कैसे हम कर लें, और उसके साथ पढ़ाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है, नो डाउट। तो जो आपको एक्सपर्ट्स यहाँ डायरेक्टली बता रहे हैं, आपको वो पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बस आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, बिना उसके फिर वो एग्जाम में क्या ना तो स्पीड बनती है, ना तो क्वेश्चन समझ में आते हैं बेसिकली। तो आप जितने क्वेश्चंस करेंगे वो अच्छा रहेगा, बस मेरे को यही लगता है इसके लिए। So thank you, madam. Thank you very much. ओके, So we are ending the session with your permission now. अरे बिल्कुल हाँ सर, जी, हाँ थैंक जी। यू सो मच, थैंक यू Thank you, ji. Thank you so much.